بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ تو آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے صنم گزیدہ از قلم عالیہ بخاری۔ صنم گزیدہ کی سٹوری لائن میں کچھ آپ کو بتا دوں، وہ کچھ اس طرح ہے جیسا کہ اس کا نام ہی ہے صنم گزیدہ۔ صنم گزیدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص چیز یا شخص کو بہت مقدس یا قدرتی ماننا۔ اب اس ناول کی جو ہیروئن ہے ہماری، وہ بھی کچھ ایسی ہی ہیں۔ پہلے تو بات ہے کہ وہ حسن پرست ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی نظر میں جو حسن ہی ہے وہی سب کچھ ہے۔ کسی بھی انسان کا، کسی بھی چیز کی خوبصورتی انہیں تبھی بھاتی ہے جب وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، کسی بھی عیب سے پاک ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہیں ایک ایسا انسان ان کی لائف میں مل جاتا ہے جو بہت زیادہ حسین ہے، اور پھر انہیں اس میں دنیا کی کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسے ہی اپنا جیون ساتھی ہمیشہ کے لیے چننا چاہتی ہے، کیونکہ جسٹ بیکاز کہ وہ بہت زیادہ حسین ہے۔ وہ سب کے اگینسٹ جا کر جو ہے وہ اسی انسان سے شادی کر لیتی ہے۔ پھر اسی کے اراؤنڈ پوری سٹوری ہے۔ شادی کے بعد ان کی لائف میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کیا وہ ہمیشہ ایک مکمل اور خوبصورت زندگی ہی گزارتے ہیں یا پھر ان کی زندگی میں کوئی اونچ نیچ آتی ہے۔ اسی پر بیسڈ یہ سٹوری ہے۔ اب انکلوڈیڈ اس میں کہ ایک عورت جو ہے وہ حسن پرست ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ وفا پرست بھی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ وفا ضرور نبھاتی ہے، جسے وہ اپنا جیون ساتھی چن لے اس کے ساتھ۔ لیکن کیا ایک مرد بھی وفا پرست رہ سکتا ہے؟ حسن پرست تو مرد ہوتا ہی ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن مرد کو حسن کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی رنگینیاں زندگی میں چاہیے ہوتی ہیں، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہوں، چاہے وہ مزید سے مزید حسین لڑکیوں کی شکل میں ہوں۔ رائٹر نے اس میں جو ہے ہیرو اور ہیروئن دونوں کی ہی کمزوریوں کو بہت اچھے سے اجاگر کیا ہے۔ آپ سنیے، آپ کو سن کے بہت اچھا لگے گا، اور اچھا لگے تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کامنٹس میں، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں اپنی سٹوری۔ خود سر اور خود پسند تو خیر وہ صدا کی تھی، لیکن اپنی شادی کے معاملے میں ان سے یوں دو بدو زبان درازی کرے گی ایسا تو ماں کے وہم و گمان میں ہرگز نہ تھا۔ اس کے قطعی انکار کرنے پر وہ کچھ دیر تو بالکل سن بیٹھی رہ گئیں۔ آخر برائی کیا ہے؟ نیک شریف کھاتا کماتا ہے اور سب سے بڑھ کر گھر کا بچہ ہے، پھر انکار کی وجہ؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے خود کو سنبھال کر تند نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا برائی ہے؟ یہ آپ نہیں سمجھ سکیں گی۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں۔ اوفو، دماغ تو دیکھو عرش پر پہنچے ہوئے ہیں مہارانی کے۔ میں کہتی ہوں ہوش میں رہو۔ اماں بری طرح تلملا گئیں۔ اماں پلیز خواہ مخواہ بات نہ بڑھائیں۔ کیا رکھا ہے انور میں؟ شکل دیکھی ہے؟ قسم سے اس کے ساتھ تو چلتے ہوئے بھی مجھے شرم آئے گی۔ اس کے لہجے میں ہی نہیں، آنکھوں میں بھی حقارت تھی۔ خدا کا خوف کرو مہرو، اس کی بنائی ہوئی شکل پر اعتراض کرنے والی تو کون ہے؟ اور اپنے جس حسن کا تجھے اتنا مان ہے وہ بھی اسی کی دین ہے۔ آپ بھی تو میری بات سمجھنا نہیں چاہ رہی۔ جس شخص کو میرا دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے کیوں مجھ پر مسلط کرنے کی فکر میں ہے؟ مہرین اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ میں نے دنیا دیکھی ہے بیٹا، وہ کچھ ابھی نہیں سمجھ سکتی جو ہم جانتے ہیں۔ انور بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، اور آپا مجھ سے زیادہ تجھ پر جان چھڑکتی ہیں۔ پھر جس طرح تمہارے باپ کے بعد آپا اور بھائی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا، تو کیا اس کا یہی صلہ ہے کہ ان کے اتنے ارمانوں سے بڑھایا ہوا ہاتھ یوں جھٹک دیا جائے؟ اس کی خاموشی سے اماں کو لگا جیسے ان کی بات اس کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ کہیں نا میری زندگی تباہ کر کے آپ خالہ جان کے احسانوں کا بدلہ اتارنا چاہ رہی ہیں؟ مہرین کی آنکھیں سچ مچ بھر آئیں تو اماں تڑپ اٹھیں۔ نہیں میری بچی، خدا نہ کرے، تیرے اور شہزاد کے سوا میرا ہے ہی کون؟ میں تو تیرے بھلے کے لیے ہی سمجھا رہی تھی۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ تو بس اب آپ خالہ جان کو منع کر دیں، وہ بہت اچھی ہیں، دیکھیے گا بالکل برا نہیں مانیں گی۔ اماں کو کمزور پڑتا دیکھ کر اس نے جھٹ آنسو صاف کر لیے تو وہ اپنی پریوں جیسی بیٹی کو دیکھ کر رہ گئیں۔ شہزاد اور مہرین ان کی دو ہی اولادیں تھیں۔ شہزاد مہرین سے 2 برس بڑا تھا۔ 15 برس پہلے جب ان کے شوہر ٹریفک کے ایک حادثے میں اچانک ہی ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، اس وقت دونوں ہی بچے خاصے کم عمر تھے۔ شروع میں تو اماں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سر پر آ گرا ہو۔ 2 چھوٹے بچوں کے ہمراہ زندگی کا سفر کس ڈھنگ سے طے ہوگا، ان کی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ مرحوم شوہر نے ساری زندگی رزق حلال کی
रिज़्क़ हलाल को जज्बे ईमान बनाए रखा और ख़ुद वो भी नहायत कनात पसंद, सलीका शार और राज़ी बराज़ा रहने वाली खातून थी। लिहाजा उनका कुल असासा ग्रेजुएटी फ़ंड की इस रकम के अलावा और कुछ ना था जो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी थी। सबसे बड़ा मसला सर छुपाने का था। अब हर माह एक माकूल रकम किराए की मद में खर्च करने की इस्तात उनमें नहीं थी। इस मौके पर उनकी इकलौती बड़ी बहन के शोहर ने ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर और कुछ जानने वालों से कह सुनकर ग्रेजुएटी फ़ंड की रकम जल्द ही अम्मा को दिलवा दी थी। फिर उन्हीं के मशवरे से अम्मा ने 120 गज का मकान खरीद लिया, जिसमें 2 कमरे, किचन और बाथरूम ऊपर भी बना हुआ था। ऊपर के हिस्से में खुद शिफ्ट होकर निचली मंजिल को उन्होंने किराए पर दे दिया। सो इस तरह किराए की रकम और माहाना पेंशन से जिंदगी की गाड़ी जूं तूं चलने लगी। जल्द ही अम्मा को अंदाज़ा हो गया था कि बच्चों की बेहतर तालीम के लिए उन्हें मजीद रकम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने सिलाई मशीन भी संभाल ली। अल्लाह ने हाथ में ऐसा हुनर दिया था कि उससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी। शहजाद तो खैर एक शरारती लेकिन ज़हीन बच्चा था, जिसने छोटी मोटी शरारतों के अलावा उन्हें कभी ना उलझाया था। लेकिन महरीन की हुस्न पसंद फितरत से वो अक्सर खाइफ हो जाती। अल्लाह ने अच्छी शक्ल से नवाजा था। वो हज़ारों में नहीं तो सैकड़ों में ज़रूर नुमाया होती थी। उस खूबी का एहसास उसे खुद शिद्दत से था। शुरू शुरू में मोहल्ले की बच्चियां उसे अपने खेल में शामिल करने के लिए बुलाने आती, लेकिन अम्मा के लाख कहने पर भी वो टस से मस ना होती। फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने भी आना छोड़ दिया। प्यार से डांट कर अम्मा ने हर तरह समझा कर देख लिया, लेकिन उसका एक ही जवाब होता था, गंदी हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती। स्कूल के फंक्शंस में शहजादी के रोल के लिए टीचर का अव्वलीन इंतखाब क्या बनती कि बाकी की क्लास को कभी ज़्यादा लिफ्ट देने की ज़रूरत ना समझी। कॉलेज तक पहुंचने पर सूरत हाल में कुछ तब्दीली ज़रूर आ गई थी। एक तो वहाँ की लड़कियों की अक्सरियत खुद ही अपने आगे किसी को कम ही गर्दानती थी। दूसरे उम्र के साथ ही महरीन को भी इतना शऊर आ गया था कि अब वो बरमला किसी की शक्ल सूरत पर इजहार ख्याल करने से गुरेज करती। एक दो लड़कियों से ठीक ठाक दोस्ती भी कर ली थी, जिनकी बदौलत कॉलेज में वक्त अच्छा खासा गुजर जाता था। अब पिछले साल ग्रेजुएशन करने के बाद उसने एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर ली थी, जबकि शहजाद भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल कर चुका था और अब कुछ माह कबल ही वह गैर मुल्की फर्म में मुलाजमत हासिल करके मस्कत जा चुका था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसका क्या जाता था कि बचपन से दिल में छुपा एहसास बर्तरी अब शिद्दत इख्तियार कर चुका था। ऐसे में सांवली रंगत और दरमियाने कदो कामत वाले अनवर के रिश्ते से वो बुरी तरह चिढ़कर रह गई। हालांकि वो एक शरीफ और सुलझा हुआ नौजवान था, बैंक में 2nd क्लास ऑफिसर की पोस्ट पर फाइज था, आगे तरक्की के रोशन इम्कानात भी थे। लेकिन महरीन की नज़र में उन सब बातों की कोई अहमियत ना थी। शरीके ज़िंदगी के मुतालिक उसके आदर्श बहुत ऊंचे थे, जिनमें अनवर जैसे शख्स की गुंजाइश नहीं थी, और अब तो उसे अपना आइडियल बहुत करीब नजर आ रहा था। आसिम, अब जल्दी कुछ करो प्लीज़, नहीं तो अम्मा कुछ ना कुछ फैसला कर बैठेंगी। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है। महरीन ने ऑफिस से निकलते ही सारा किस्सा आसिम के गोश गुजार करना चाहा। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, वहीं इत्मीनान से सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। आसिम ने लापरवाही से कहा, मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुक सकती, क्योंकि वैसे ही कल मैंने अम्मा को नाराज़ कर दिया है। अब मज़ीद उनकी नाराज़गी हमारे हक में अच्छी नहीं होगी, महरीन ने जल्दी से कहा। आसिम से उसकी वाक़फ़त को सिर्फ 8 महीने गुजरे थे, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो सदियों से उसके अलावा किसी और को जानती ही ना हो। खुश शक्ल और दराज कामत आसिम अपनी शानदार पर्सनैलिटी की वजह से पूरे ऑफिस में नुमाया नजर आता था। वो उसी के सेक्शन में काम कर रही थी, लिहाजा बार बार दोनों का एक दूसरे से वास्ता था। चंद दिनों में ही महरीन ने अपने लिए उसका बढ़ता हुआ इल्तफात महसूस कर लिया था, और वो मगरूर दिल जो किसी को दर को इतना नहीं समझता था, आसिम की शानदार शख्सियत का असीर होता चला गया। और अब महरीन के दिल की सारी धड़कनें उसी के नाम थीं, और ऐसा कुछ दावा आसिम का भी था। अच्छा तो ये किस्सा है। आसिम चाय का सिप लेते हुए ज़रा रुका। तुमने तो ऐसे डरा दिया जैसे तुम्हारी अम्मा कल ही तुम्हारा निकाह अनवर से कर रही हैं। तुम्हारी यही लापरवाही रही तो निकाह भी हो जाएगा। उसकी बेनियाजी को देखकर महरीन रुहानसी हो गई। अरे तुम तो सीरियस हो गई। देखो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, ये तो तुम भूल जाओ, या तुम्हें मेरा यकीन नहीं है। उसने अपनी डार्क ब्राउन आंखें महरीन पर जमाते हुए कहा, जितना यकीन तुम पर है इतना तो अपने आप पर भी नहीं। लेकिन आसिम तुम समझ नहीं रहे, अम्मा मेरी जल्द अज जल्द शादी करना चाह रही हैं। शहजाद भाई हर दफ़ा फ़ोन पर यही कहते हैं कि अम्मा मेरी शादी से फारिग होकर उनके पास चली जाएं। इससे पहले भी मैं कितने रिश्तों को मना कर चुकी हूँ, और कल रात तो अम्मा ने खुद मुझसे कहा कि अगर मेरी मर्जी कहीं है तो उन्हें बता दूँ। महरीन ने नज़रें झुकाए झुकाए बात पूरी की। जब भी वो उसकी तरफ नज़र भर कर देखता था तो ना जाने वो क्यों कमज़ोर पड़ने लगती थी। वाओ, तो फिर तुमने जल्दी से मेरा नाम ले देना था। वो हंसा। शर्म करो, जब तक तुम्हारा बाकायदा रिश्ता नहीं आता, रिश्ते की बात नहीं शुरू करोगे तो मैं भला कैसे कह सकती हूँ। वो कुछ नाराज़ नज़र आ रही थी। देखो महरीन, ये बात तो तय है कि मेरे वालिदैन इस रिश्ते पर कभी तैयार नहीं होंगे। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी अम्मी अपने तौर पर अपनी भांजी को बहू बनाने का फैसला किए बैठी हैं। अब के आसिम ने संजीदगी इख्तियार कर ली थी। एक दफ़ा और कोशिश करके तो देखो, मुझे उनसे एक बार मिलाओ तो सही, शायद मुझे देखकर वो अपना फैसला, हाँ जैसे उनका बेटा चित हुआ इस तरह वो भी तुम्हारे हुस्न के आगे हथियार डाल देंगी। वो उसकी बात काट कर हंसा तो वो बुरी तरह झीम गई।
नहीं महरीन, वो अपना फैसला बदलने वालों में से नहीं है। उन्होंने मुझसे साफ कह दिया है कि अगर मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा तो इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, और अब्बा भी इस मामले में पूरी तरह उनके हमनवा हैं। फिर आसिम, हमारा क्या बनेगा? सचमुच मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। एक ही रास्ता है महरीन, अगर तुम्हारी अम्मा मान जाएं। वो ज़रा की ज़रा रुका तो महरीन ने बेचैनी से उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। यही कि मेरे दोस्त सरफराज की वालदा और बीवी तुम्हारी अम्मा से जाकर हमारे रिश्ते की बात करें, फिर तुम्हारी वालदा मेरे मुतालिक जो इत्मीनान करना चाहें वो कर सकती हैं। मैं, मेरी मुलाजमत वगैरह सब कुछ तुम्हारे सामने है। यानी तुम्हारे वालदैन के बगैर हमारी शादी हो जाए। हमारी शादी सिर्फ इसी तरह हो सकती है, या अगर तुम मुझे खोने का हौसला अपने अंदर पाती हो तो दूसरी बात है। महरीन की आंखों में तजब्जुब के साए देखकर उसने कुछ रूठे हुए लहजे में कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा करो कि उन्हें हमारे यहाँ भेज दो। महरीन के लिए तो अब कोई दूसरा ख्याल सुहाने रूह था। तो ठीक है, चलो अब बैंड बाजे बजवाने की तैयारी शुरू करें। वो कुर्सी सिरका कर खड़ा हुआ तो वो भी गुलनार चेहरा लिए उसके ऊंचे शानदार सरापे को देखकर फखर से मुस्कुरा दी। जिस दिन आसिम के दोस्त की वालदा और बेगम को आना था, उसने एक दिन पहले अम्मा को बता दिया था कि कुछ मेहमानों को आना है। महरीन के चेहरे पर फैली खुशी से अम्मा मेहमानों की नौयत और आमद के मकसद को खुद ब खुद समझ गईं। माँ थी, औलाद की खुशी से ज़्यादा उनके लिए क्या चीज़ हो सकती थी। तो वो खुशी खुशी आने वाले मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में लग गईं। मेहमान मुकर्ररा वक्त पर आए। महरीन तो ज़रा सी देर के लिए चाय और ढेरों लवाजमात के साथ उनके सामने गई और फिर फ़ौरन ही अपने कमरे में आ गई। अम्मा और उन लोगों के दरमियान क्या बातचीत हुई ये वो ना जान सकी। पर इन लोगों के जाने के बाद चाय के बर्तन समेटते हुए उसने अम्मा की गैर मामूली खामोशी को महसूस कर लिया था। वो किसी गहरी फिक्र में डूबी हुई लग रही थी। महरीन का दिल परेशान होने लगा, लेकिन फिर आसिम का खुशकुन ख्याल सारी फिक्रों को कोसों दूर ले गया। उसी रात जब अम्मा ने इस मसले को महरीन के सामने रखा तो उसने नजरें झुकाकर अम्मा को साफ बता दिया कि इस रिश्ते में उसकी 100% मर्जी शामिल है। बाद में उन्होंने महरीन को लाख समझाने की कोशिश की कि जिस रिश्ते में वालदैन और ख़ानदान वालों की रज़ा ना हो उसकी पायदारी हमेशा मशकूक रहती है, लेकिन वो बज़िद रही। उसकी ज़िद के आगे हार कर उन्होंने अपनी बहन और बहनोई से मशवरा किया। खाला जान को अगरचे महरीन का अपनी बहू ना बन सकने का बहुत कलक था, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि इस रिश्ते में फ़रीक़ैन की बाहमी रजामंदी कितनी अहम होती है। इसीलिए उन्होंने अपने रंज को भुला दिया था और अपनी भांजी की खुशियों के लिए दुआ गो रहती थीं। अनवर और खालू जान के जरिए जो मालूमात अम्मा को हासिल हुई उनके मुताबिक आसिम में बज़ाहिर कोई बुराई ना थी। ये सारी छानबीन भी रस्मी ही थी, क्योंकि महरीन ने साफ कह दिया था कि अगर यहाँ शादी ना हुई तो वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करेगी। बहन बहनोई के समझाने और अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर अम्मा ने हामी तो भर ली थी, लेकिन दुख का एक एहसास दिल के किसी हिस्से में रह गया था। महरीन, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, समझ में नहीं आ रहा कहूँ या ना कहूँ। आसिम ने झिझकते हुए महरीन से कहा। उनकी शादी में महज एक हफ्ता रह गया था और आज से महरीन एक माह की छुट्टियों पर जा रही थी। ऐसी क्या बात है आसिम जो तुम मुझसे नहीं कह पा रहे हो? महरीन के अंदाज में हैरत थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि यह शादी किन हालात में हो रही है। आमतौर पर यह सारा बखेड़ा वालदैन ही निपटाते हैं, और अभी मैं शादी के अखराजात के मुतालिक कोई प्लानिंग भी नहीं कर पाया था। बस मैं समझ गई। देखो, मेरे ज़ाती अकाउंट में इस वक्त कुछ पैसे पड़े हैं, वो तुम निकलवा लो और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-4 जोड़े और एक हल्का सा सूट खरीद लेंगे। महरीन ने उसकी परेशानी को भांपते हुए कहा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा महरीन, बजाय इसके कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं उल्टा तुम पर बोझ डाल रहा हूं। आसिम काफ़ी शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। ओफो, फिर वही बात, मेरे और तुम्हारे पैसे कोई अलग अलग हैं। मुझे ज़रूरत होगी तो क्या मैं तुमसे नहीं लूँगी? ये लो चेक, और बल्कि ऐसा करो कि तुम जाकर खुद ही शॉपिंग कर लेना, मेरा तो अब तुमसे मिलना मुश्किल है। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए महरीन कुछ महजूब सी हो गई। क्या मतलब? इतना लंबा अरसा? कुछ अंदाज़ा है कि इस दिल पर क्या गुजरेगी? वो यकदम बशाश हो गया। संभाल कर रखो अपने दिल को, और मुझे कोई रिक्शा या टैक्सी दिलवा दो। वो दिल की धड़कनों को संभालती हुई बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो आसिम भी हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। महरीन की शादी तय हो जाने के बाद खाला जान ने अनवर की शादी भी अपने रिश्तेदारों में तय कर दी थी, और महरीन की शादी के ठीक 15 दिन बाद 15 दिन बाद अनवर की शादी थी। इस जल्दी की असल वजह महरीन की शादी तय हो जाने के बाद खाला जान ने अनवर की शादी भी अपने रिश्तेदारों में तय कर दी थी, और महरीन की शादी के ठीक 15 दिन बाद अनवर की शादी थी। इस जल्दी की असल वजह अम्मा की मस्कत रवानगी थी, जो कि महरीन की शादी के 1 माह बाद होनी थी। शहजाद को अभी छुट्टी मिलना नामुमकिन था, इसलिए उसने किसी आने वाले के हाथ काफ़ी सामान भिजवाया था, और अम्मा को भी हर बार फ़ोन पर ताकीद की थी कि महरीन के लिए किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। महरीन की शादी अनवर से ना होने का उसे बहुत अफसोस था, लेकिन अम्मा ने उसको समझा दिया था।
खालू जान की वसासत से घर का सौदा भी तय पा गया। लेने वाले खालू जान के करीबी दोस्त थे। वो बखुशी इस अमर पर राजी हो गए थे कि मेहरीन की शादी और अम्मा की रवानगी के बाद वो मकान का कब्जा लेंगे। मेहरीन की शादी के पेश नज़र उन्होंने पेमेंट पूरी कर दी थी। आसिम से मिलकर उसकी मुहज़्ज़िब और दिलकश शख्सियत को देखकर अम्मा को कुछ इत्मीनान तो ज़रूर हुआ था। फिर मेहरीन के चेहरे पर खिलते गुलाब देखकर अम्मा ने अपने खदशात पर काबू पा लिया और खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गईं। अपनी बसात से बढ़कर उन्होंने मेहरीन के लिए जहेज तैयार किया था, किसी चीज़ की कमी ना रहने दी थी। एक मुकम्मल घर का हर सामान मौजूद था। मेहरीन ने मना भी किया था कि इतनी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, लेकिन उनका बस चलता तो शायद वो अपनी दिलो जान बेटी के कदमों में रख देती। कभी कभी मेहरीन को शदीद शर्मिंदगी का एहसास आ घेरता। वो सोचती कि अम्मा ने अपनी खुशी के खिलाफ भी उसकी खातिर क्या क्या बर्दाश्त किया है, हालांकि उसने अम्मा की खुशी को पूरा करने से साफ इनकार कर दिया था। शायद माँ और औलाद में यही फ़र्क होता है। अनवर भाई की दुल्हन कैसी लगी आसिम? मेहरीन ने ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठते हुए कहा। वो लोग अभी अभी अनवर के निकाह की तकरीब से वापस आए थे। उसका सवाल सुनकर वो धीरे से हंस दिया। बताओ ना, हंसने की क्या बात है? वैसे खाला जान ने जेवर और शादी का जोड़ा तो वाकई बहुत ज़बरदस्त बनाया था, लेकिन वो अपनी बात अधूरी छोड़कर मायनी खेज अंदाज में हंस पड़ी। अब हमारी जैसी किस्मत हर एक की थोड़ी है। उसने वालिहाना नज़रों से मेहरीन की तरफ देखा, जो कोरे के काम के भारी मैरून सूट और मैचिंग ज्वेलरी के साथ होश उड़ाने की हद तक अच्छी लग रही थी। भला आपके आगे किसी का चिराग जल सकता है? आसिम ने बात पूरी की। खैर, चर्चे तो आपके भी अरूज पर रहे हैं सारी महफिल में। मेहरीन के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट दस्तूर थी, और यह हकीकत भी थी कि खाला जान के यहाँ सारी तकरीब में वो दोनों मियाँ बीवी चांद सूरज की जोड़ी कहला रहे थे। शादीशुदा जोड़े की हैसियत से उनके एहतमाम से की गई तैयारी ने उन्हें और ज़्यादा नुमाया कर रखा था। आसिम पर पड़ने वाली लड़कियों की तौसीफी नज़रें मेहरीन ने बारहा नोट की, और आज रुखसती से पहले जब उसे और आसिम को मूवी बनवाने के लिए स्टेज पर बुलवाया गया, तो दुल्हन के पहलू में बैठे हुए अनवर भाई आसिम के वजीर सरापे के आगे कितने दबे दबे से लग रहे थे। वो खुद आसिम के संग फखर से सर ऊंचा किए बैठी थी। आम से नकूश की मालिक सायरा भी उस पर कोई खास असर नहीं डाल सकी। चलो खैर, अनवर भाई और सायरा भाभी की जोड़ी ठीक है, उसने दिल ही दिल में तबसरा किया। उनकी शादी को 2 माह हो गए थे। वो बहुत खुश थी। जिंदगी एक रूह पहली धुन में लिपटी हुई महसूस हुई थी, जहाँ चारों तरफ रंगों और खुशबुओं की बरसात थी। अरमानों की जुगनू और ख्वाहिशात की सारी तितलियाँ उसकी दस्तरस में थीं। वो अपने इस रंग महल से बाहर झांकना भी नहीं चाहती थी। अम्मा शहजाद के पास चली गई थी। फितरी तौर पर मेहरीन कुछ आजरदा हुई, लेकिन आसिम के वालिहानापन ने जल्द ही सब कुछ भुला दिया। इस रोज़ छुट्टी थी। वो लोग आज ज़रा देर से उठे थे। नाश्ते से फारिग होने के बावजूद अभी वो टेबल पर ही थे कि अचानक डोरबेल के साथ किसी ने निहायत बेसब्री से दरवाज़ा भी बजाना शुरू कर दिया। आ रहा हूँ भाई, ज़रा सब्र तो करो, आसिम ने दरवाजे पर पहुँचते हुए कहा। अरे सब्र के बच्चे, तुझे तो हम इस वक्त सब्र कर चुके जब तू बूढ़े माँ बाप को छोड़कर यहाँ ऐश करने बैठ गया था। आगे आने वाले तनो मन से उधेड़ उमर साहब का हुलिया और तेवर दोनों ही जा रहाना थे। ज़रा इस महारानी को तो देखो, जो मेरे बच्चे पर कब्जा जमा कर बैठी है। मैं कहती थी आसिम के अब्बा, इसे तन्हा शहर ना भेजो। देखा कैसा मेरा मासूम बच्चे को वर्गलाया। पीछे आने वाली खातून गालबन एक मंजिल नीचे से बोलती चली आ रही थी। उनके साथ आने वाली नौजवान लड़की की सारी तवज्जो अलबत्ता मेहरीन के बेहद खूबसूरती से सजाए गए लाउंज पर थी। अम्मा, अपने झगड़े फिर निपटाती रहना, मुझे तो फारिग करो। टैक्सी ड्राइवर ने नहायत अक्खड़पन से टीन के छोटे बड़े बक्स और होल्डर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, टीन के छोटे बड़े बक्स और होल डाल को जमीन पर पटकते हुए कहा, तो आसिम जल्दी से उसकी तरफ मुड़ गया। मेहरीन सरासीमा सी खड़ी थी। इतना तो वो समझ चुकी थी कि आने वाले आसिम के वालदैन और बहन हैं, लेकिन दिलो दिमाग यकीन करने से कासिर था, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक तो आसिम का ताल्लुक एक अच्छे मुतवसत घराने से था। उसकी बातचीत और पहनने ओढ़ने के तौर तरीके इस बात की गवाही देते थे। लेकिन अब आने वाले मेहमान मेहरीन के हर ख्याल की बड़ी बेजख्मी से नफी किए दे रहे थे। अम्मा, आप बैठें तो सही। मेहरीन, चलो अम्मी को सलाम करो। आसिम ने उन्हें शाने पर हाथ रखकर बिठाना चाहा। अरे, इसका सलाम लेती है मेरी जूती, कैसे ठाठ से मेरे बेटे के सजे सजाए घर में आकर बैठ गई। उनके धुतकारने पर पीछे हटती मेहरीन ये भी ना कह सकी कि इस सजे सजाए घर में उनके बेटे का लगाया हुआ एक तिनका भी नहीं है। किराए के लिए गए इस फ्लैट का 25,000 एडवांस और 6 माह का बेशतर किराया उसकी माँ अदा करके गई हैं। अरे अम्मा, असल मालिक तो आप हैं इस घर की। मेहरीन, जाओ कुछ नाश्ता वगैरह तैयार करो। आसिम बदस्तूर उन्हें आराम करने में मसरूफ़ था। मेहरीन ने भी इसी बहाने सामने से हट जाने में ही आफियत जानी। ये सब क्या है आसिम? तुमने आखिर ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया था? रात को अपने कमरे में आते ही मेहरीन फट पड़ी। सारा दिन इसी हिसाब शिकन सूरत हाल का सामना करते करते उसके हिसाब जवाब दे रहे थे। क्या छुपाया था मैंने? तुम्हें नहीं पता था कि मेरे वालिदैन और बहन मौजूद हैं? नाराज से तो क्या हमेशा ही नाराज तो नहीं रह सकते ना। वो अक्खड़पन से गुराया तो उसके लहजे की तब्दीली मेहरीन को चौंका गई। मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो खुद उनसे मिलना और उन्हें मनाना चाह रही थी, लेकिन ये तो कुछ अजीब से लोग। बस बस बहुत हो गया। वो उसकी बात खत्म होने से पहले ही एकदम गुस्से में आ गया।
क्या अजीबोगरीब हैं। मैं सब समझता हूँ तुम्हारी बातों का मतलब। मेरे सीधे साधे वालिदैन को जाहिल गंवार साबित करना चाह रही हो। कान खोल कर सुन लो मेहरीन बेगम, वो जैसे भी हैं मेरे माँ बाप हैं। उनकी देखभाल और खिदमत मेरा फ़र्ज़ है, और अगर समझो तो तुम्हारा भी। अपनी पसंद से शादी करके मैं उन्हें एक दुख दे पहुँचा चुका हूँ। अब उन्हें मेरे हवाले से कोई तकलीफ़ पहुँचे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, तो तुम सुनो अपने अम्मा अब्बा का लेक्चर। आसिम के लहजे में झांकती अजनबियत मेहरीन को बुरी तरह तपा गई। उसने भला कब अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ सुनना गवारा किया था? जब इतने ही फर्मा बरदार थे तो मेरे साथ ये सारा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने क्या ड्रामा किया है? मैंने कोई हाथ तो नहीं जोड़े थे शादी के लिए, तुम ही पीछे पड़ी हुई थी। नहीं तो मुझे क्या मुसीबत थी जो मैं अपने घर वालों की अदम मौजूदगी में इतना बड़ा कदम उठाता। और तुम बजाय मेरी शुक्रगुजार होने के उल्टा इल्ज़ाम दे रही हो। आसिम ने कंबल अपने ऊपर खींचते हुए कहा तो वो हैरत भरी नज़रों से अपने महबूब शोहर को देखती रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ आसिम ने कहा है। वो समझती थी कि आसिम ने उसकी मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठाया था, लेकिन इस लम्हे का ये इंकिशाफ कि उसने तो अपनी ज़ात को मजबूरी का सौदा बनाकर आसिम के सर पर मुंडा है, उसके दिल को कहीं पाताल में गिराया जा रहा था। अपनी ज़ात का सारा फ़ख्र रुई के गालों की तरह बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। न जाने कितनी देर वो उसी तरह बैठी रही। बेआवाज़ आंसू उसके चेहरे और दामन दोनों को भिगोते रहे। काफ़ी देर बाद उसने गर्दन मोड़कर देखा तो आसिम गहरी नींद सो चुका था। उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। शायद रात के किसी पहर या कल सुबह आसिम अपनी बातों पर शर्मिंदा हो और कहे कि मेहरीन, तुम तो मेरी अवलीन मोहब्बत हो, भला मैं तुमसे कैसे दस्तबरदार हो सकता हूँ। ये सब कुछ तो मैं गुस्से में कह गया था। करवट लिए लेटी मेहरीन के कान में दिल खुश फहम ने फिर सरगोशी की तो वो कुछ पुरसुकून होने लगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी अब दोबारा ये मौजू नहीं छेड़ूंगी। जैसे भी हैं आसिम के वालदैन, इन्हें खिदमत और मोहब्बत से अपना बनाऊंगी। गलती मेरी भी है, मुझे आसिम के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जाहिर है कौन अपने घर वालों की बुराई सुन सकता है। औरत की फितरत में रची अज़ली महबूबियत ने एक दफ़ा फिर महबूब को बरी ज़िम्मा करार देकर गुनाह अपने खाते में डालने चाहे, लेकिन ना उस रात, ना उससे अगली सुबह और ना ही उसके बाद आने वाली बहुत सी सुबहों में कोई फूल खिलाता खुशकुन लम्हा उसकी झोली में गिरा। सुबह शाम में अजीब सर्द मोहरी सी बस गई। पहली तलखी पैदा हुए भी अब तकरीबन 1.5 माह होने को आए थे। आसिम ने इस तमाम अरसे में बारहा मेहरीन को यह जता दिया था कि हालात को जूं का तूं उसे बर्दाश्त करना है, नहीं तो वो कुछ और फैसला भी कर सकता है। उसके लहजे की कतियत मेहरीन के सारे वजूद पर एक मायूसी सी बनकर फैल गई थी। वो बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। आसिम के वालदैन का रवैया भी अल-अमान, खास तौर पर उसकी अम्मा, वो तो मेहरीन को ज़रा सी रियायत देने के लिए तैयार नहीं थी। मेहरीन, कमीज़ का बटन टूटा हुआ है, ज़रा जल्दी से टांग दो। आसिम कमीज़ लिए किचन में ही चला आया, जहां वो रात के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। अब उसकी घरेलू ज़िंदगी भी बहुत मसरूफ़ होकर रह गई थी। ऑफिस से आने के बाद रात का खाना पकाने, घर की सफाई और सैकड़ों छोटे मोटे काम उसकी तवज्जो के मोहताज होते थे। आसिम की माँ अपनी बेटी को तो शायद कसम दिलाकर लाई थी कि किसी हाथ को काम नहीं लगाना। ज़रा सी देर रुक जाओ, ज़रा ये कीमा भून जाए। मेहरीन ने नरमी से जवाब दिया। आसिम से उलझना उसने बिल्कुल छोड़ दिया था। क्या फ़ायदा जब इंसान के पास दूसरा कोई रास्ता ही ना हो, और उसने सोच लिया था कि अम्मा को अब अपनी ज़ात से किसी दुख या उलझन में मुब्तला नहीं करेगी। यही वजह थी कि उनके हर टेलीफोन पर सब अच्छा है की रिपोर्ट वो उन्हें खुशी खुशी सुनाती और दूर बैठी माँ का दिल मुतमईन हो जाता। आसिम का लहजा भी उनसे बात करते हुए बहुत मोहब्बत वाला हो जाता था। किस कमाल का अदाकार है ये शख्स, मेहरीन हैरत से सोचती। उलझे उलझे बालों और मलगजे कपड़ों में मलबूस मेहरीन पर उसने एक नज़र डाली। नाहीद से कहा करो तुम्हारा हाथ बटाया करे। ना जाने उसे सुनने में गलती हुई थी या वाकई वो माइल बकरम था। नाहीद, नाहीद, ये क्या सारा वक्त रसालों टीवी में लगी रहती हो? सारा दिन घर में होती हो, कुछ तो घर में दिलचस्पी लिया करो। वो मेहरीन को वहीं छोड़कर बहन के सर पर जा पहुंचा, जो हस्बे मामूल सोफे में धुंसी वीडियो देखने में मसरूफ थी। जहेज में लाए इस कीमती सोफे को देख देख मेहरीन का दिल रोता था, जो चाट छोले खाना पीना गर्ज नाहीद के सारे मशाकिल की नज़र होकर दीदा इबरत बन चुका था। शर्म तो नहीं आती तुझे? ज़रा सी देर में बीवी ने भर दिया और तू खड़ा हो गया बहन पर चिल्लाने। अम्मा हस्बे आदत फुल वॉल्यूम से गोया हुई। अम्मा, मैं एक बात समझा रहा हूँ, आप गलत बात ना करें। वो न जाने किस मूड में था जो बीवी की हालत पर ज़रा सा रहम आ गया था। हाँ हाँ, गलत बातें तो हम ही करते हैं, सही तो तू है या तेरी बीवी। अरे मेरी बच्ची, तेरी किस्मत ही खराब है। तू अब भाई भावज के यहाँ नौकरी करेगी तो फिर रोटी के 2 टुकड़े खाने को मिलेंगे। उन्होंने ख्वामखा ही आंखों पर दुपट्टा रख लिया। इधर बेटी साहिबा ने भी इस सीन में ज़्यादा जान पैदा करने के लिए अम्मा के कंधे पर सर रखकर सिसकियाँ लेनी शुरू कर दी। अरे अम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये उफ मर गया। लाउंज में पड़े बॉक्स से पैर टकराने पर आसिम सर पकड़कर वहीं बैठ गया। लाउंज और कमरे में अब हमा वक्त रेलवे प्लेटफॉर्म का समंजर पेश करते थे। मैं तो पहले ही कहता था आसिम की माँ, हमारा गुजारा इनके साथ मुश्किल है। इस बेइज्जती से तो कहीं अच्छा है कि मैं भीख मांगकर तुम्हारा और अपनी बेटी का पेट पाल लूँ। अब भला कैसे पीछे रहते, हालांकि अच्छे खासे सेहतमंद थे। मेहरीन ने तो सवाए
इंतहाई ज़रूरत के उन्हें बिस्तर से उठते नहीं देखा था। यहाँ तक कि वो चहलकदमी को भी इंतहाई फजूल करार देते थे। किस कदर पागलपन है। भला इस उम्र में खुद को इतना थकाना, कहीं जोड़ खुल गए तो बिल्कुल ही बिस्तर से लग जाएं। उन्होंने ब्लॉक में रहने वाले चंद बुजुर्ग खवातीन और हजरात को पाबंदी से सुबह शाम की वॉक करते देखकर तबसरा किया था। कम वक्त, दुनिया तो तेरी खराब हो ही चुकी है, अब आकबत बिगाड़ने पर क्यों तुला है, वो भी ऐसी लड़की के पीछे जिसने ससुराल वालों का बारात के साथ आना भी जरूरी ना समझा। अरे माँ बाप के हकूक तो कोई खुशकिस्मत ही अदा कर सकता है। आसिम को मुतासिर होता देख माँ ने मजहब में वालदैन के हकूक पर बसीरत अफरोज लेक्चर का आगाज़ कर दिया। ना जाने हम सब मजहब में से सिर्फ अपने मतलब की बातें ही क्यों निकालते हैं। किचन में खड़ी मेहरीन को अब कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। मर्जी से की गई शादी उसके लिए एक इल्ज़ाम बन गई थी, जो आसिम के अलावा घर वालों के मुंह से भी ना जाने कितनी दफ़ा और किस किस उन्वान से उसकी रूह को छेद डालती थी। वाकई जो बहुएं सारे घर वालों की खुशी के साथ नई जिंदगी का आगाज़ करती हैं, उनकी खुशबख्ती और एहतराम का अलग ही रंग होता है। बाद में चाहे ससुराल वाले लाख उसके रवैये को नापसंद करें, लेकिन एक लिहाज और जाहिरदारी बहरहाल बरकरार रहती है। इस तरह से बेतौकीर तो नहीं होती। बाहर होने वाला हंगामा अब सर्द पड़ चुका था। आसिम रफ़ाए शिर की खातिर शायद नीचे जा चुका था। टीवी की तेज़ आवाज़ ने उसको बावर करवा दिया कि सब दोबारा अपने अपने मशागिल में मसरूफ़ हो चुके हैं, सो वो भी गनीमत जानकर अपने कमरे में चली आई। अनवर की बेटी का अकीका था। खाला जान और अनवर खुद कार्ड लेकर आए थे। मेहरीन और आसिम के अलावा उसके सास, ससुर और नंद को भी बड़े असरार से मधु करके गए थे। मेहरीन का दिल तो ना चाहता था, लेकिन खाला जान की मोहब्बतों के आगे वो मजबूर थी। उसके लिए उनकी शफकतों में कभी कमी ना आई। शुरू शुरू में तो वो अक्सर आ जाया करती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता आसिम की अम्मा की जुबान की तेज़ी ने उन्हें अपने कदम रोकने पर मजबूर कर दिया था। वो समझ गईं कि उनका ज़्यादा आना जाना मेहरीन की मुश्किलात में इजाफा ही करेगा। फ़ोन पर अलबत्ता वो उसकी खैर खबर हर दूसरे तीसरे दिन ले लिया करती थीं। खाला जान ने तो बड़े इसरार से मेहरीन को सुबह आने को कहा था, बल्कि उसकी सास से भी दरख्वास्त की थी कि मेहरीन को सुबह से भिजवा दें, जिसके जवाब में उन्होंने चटक कर कहा था, लो भला, हम भिजवाने वाले कौन हैं, खुद मुख्तार हैं, जहाँ चाहें जाएँ, जहाँ चाहें आएँ, हमने कौन से पैर पकड़े हैं। सुबह से तो खैर नहीं, लेकिन मेहरीन ये ज़रूर चाह रही थी कि वक्त से ज़रा पहले पहुंच जाए तो अच्छा है। लेकिन नाहीद और उनकी अम्मा की तैयारियां पूरी शाम निकल गई। अम्मा की तैयारी देख मेहरीन हैरान तो थी ही, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी परेशान भी। इनकी और नाहीद की सजदे में 19-20 का फ़र्क भी ना था। भारी काम के जोड़े के साथ भारी ही जेवर और मैचिंग सैंडल तक मौजूद थी। खुद उसने कभी अपनी माँ को हल्के रंगों के अलावा कुछ और पहने ना देखा था। खाला जान भी कभी छोटे छोटे टॉप्स और बारीक सी चेन के अलावा जेवर के इस्तेमाल में मोहतात ही रहती थी। इसलिए अब मेहरीन दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। जाहिर है अकीके में खानदान और जान पहचान के कितने ही लोग मिलते, लेकिन इस वक्त सास को कुछ कहना बड़ों के छत्ते में हाथ डालने के बराबर था। और उसने तो इस 1.5 साल के अरसे में बड़ी से बड़ी बातों के जवाब में भी चुप का रोज़ा ना तोड़ा था। जिस वक्त ये लोग तकरीब में पहुंचे तो खासी देर हो चुकी थी। हाल पूरी तरह मेहमानों से भर चुका था। खाला जान अलबत्ता बेताबी से दाखिली दरवाजे पर ही मौजूद थी। मेहरीन को देख उनका चेहरा खिल उठा। खैर तो थी, इतनी देर कैसे हो गई। उन्होंने मेहरीन की सास का तपाक से स्वागत किया। हमारे दरवाजे पर तुम्हारी तरह गाड़ी तो खड़ी नहीं है जो जब दिल चाहा चल दिए। जाहिर है रिक्शा टैक्सी में वक्त तो लगता है। उनका मूड तो हमेशा सवा नेज़े पर रहता था। अपने सारे एहतमाम को वो गोल कर गईं। अच्छा चलें, अंदर तो चलें। और भाई साहब आप तो खैरियत से हैं। खाला जान ने बात का रुख मोड़ते हुए आसिम के वालिद को मुखातिब किया, जो इस वक्त शुक्र है खुशगवार मूड में थे, और फ़ौरन ही अपनी किसी खुदसाख्ता बीमारी का हाल तफसील से सुनाना शुरू कर दिया। ओफो, ये खासुल खास फूफी जान अब तशरीफ ला रही हैं। सायरा भाभी ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर प्यार किया तो वो भी मुस्कुरा दी। माशाल्लाह भाभी, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, बहुत बहुत मुबारक हो। नन्ही सी रुबा को गोद में लेकर वो सचमुच बहुत खुश हो गई। भाई क्यों ना प्यारी हो, आखिर इतनी हसीन फूफी की भतीजी है। सायरा भाभी ने खुश दिली से उसे सराहा तो वो जवाबन मुस्कुरा भी ना सकी। इस हुस्न के ज़ौम ने तो उसे ये दिन दिखाया था। अब तो सच्ची बात है उसका आईने में अपनी शक्ल देखने को भी दिल ना चाहता था। तौबा है मेहरीन, आखिर कहाँ होती हो तुम, हम तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गए हैं। शादी ना हुई, काले पानी की सजा हो गई। उसकी एक कज़न करीब चली आई। अरे बेटा, शादी के बाद सब यूं ही अपने अपने घरों के धंधे में फंस कर रह जाते हैं। खाला जान ने उसे जवाब देने से बचाना चाहा। आंटी, शादियां तो सबकी होती हैं, लेकिन मेहरीन तो बिल्कुल बदल कर रह गई है। रंगो रूप कुछ भी तो पहले जैसा ना रहा। एक और वाकिफकार लड़की ने तबसरा किया। और जबकि हमारे दुल्हा भाई माशाल्लाह कितने फ्रेश और स्मार्ट हो रहे हैं। एक और ने फिक्रा चस्क किया तो मेहरीन ने बड़े दिनों बाद आसिम को गौर से देखा। सफ़ेद कलफ लगे कमीज शलवार में, कीमती परफ्यूम में बसा हुआ, वो अपनी शख्सियत के सारे सहर के साथ नुमाया था। वैसे आसिम भाई, इस हुस्न का राज। एक और शौक कहा बुलंद हुआ तो मेहरीन का दिल चाहा कि चीख चीख कर उन मासूम लड़कियों को, जब भी जिंदगी की तलख हकीकतों से नावाकिफ है, बताए कि खुदा के लिए इस ज़ाहिरी चमक दमक पर ना जाओ। इस खुश रंग पर्दे के पीछे ज़िंदगी के इस स्टेज पर कभी कभी बहुत बदसूरत खेल होता है, जो ज़िंदगी के रहे सहे रंग भी उड़ा देता है।
ہے लड़कियों, क्यों मेरे बच्चे को नजर लगाने पर तुली हो? इसका खून बहुत हल्का है। मेहरीन की सास ने करारी आवाज में फटकारा तो अपनी तारीफ पर शादा और फरहा आसिम बदमजा होकर रह गया। अरे बहन आए, खाना लग गया है। आप कहाँ इन लड़कियों की बातों में उलझ गईं? खाला जान चंद ही दिनों में मेहरीन की सास की राई का पहाड़ बनाने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो गई थीं। वैसे मेहरीन, तुम्हारी सास और हस्बैंड को एक साथ देखकर वाकई यकीन हो जाता है कि गुलाब के साथ कांटे की मौजूदगी लाजमी है। उसकी एक कज़न ने सरगोशी की। हाँ बहन, किस्मत वाली हो जो बेटे की औलाद गोद में खिला रही हो। यहाँ तो लगता है ये हसरत दिल में ही लिए कब्र में जा सोएंगे। मेहरीन की सास ने एक ठंडी आह भरी तो अपनी प्लेट पर झुकी मेहरीन से सर ना उठाया गया। जाने आसपास कितने लोगों ने उनका ये दिल चीरने वाला फिक्रा सुना होगा। ऐसा ना कहें बहन, अल्लाह ने चाहा तो मेरी मेहरीन भी बेटा और बेटी दोनों को गोद में खिलाएगी। इसी समय खाला जान उसे बिल्कुल अम्मा जैसी लगी। मेहरीन की सास ने तंजिया हुंकारा भरने पर ही इत्तफाक किया, क्योंकि करीब बैठी नाहिद उन्हें तंबीही नज़रों से देख रही थी। नाहिद को इस बात का बहुत ख्याल रहता था कि वो लोग जब कहीं जाएं तो बहुत तहजीब याफ्ता घराने के अफराद दिखाई दें। इसके लिए ज़रूरी था कि वालदा साहिबा का अंदाज़े गुफ्तगू तहजीब के दायरे में रहे। इसलिए वो खुद भी घर में चाहे चीख चीख कर आसमान सर पर उठाए रखती, लेकिन किसी महफिल में उसकी गुफ्तगू मुधर मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे बोले गए चंद जुमलों पर ही मुहित होती थी। और इस वक्त तो आसपास कई स्मार्ट लड़के नजर आ रहे थे, सो वो अम्मा की वजह से अपना इंप्रेशन खराब नहीं होने देना चाह रही थी। अरे मेहरीन, ये क्या खाली प्लेट लिए बैठी हो? कुछ निकालो। सायरा भाभी उसकी तरफ चली आई। नहीं भाभी प्लीज़, मैं अच्छी तरह खा चुकी हूँ, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं। उनके इसरार पर मेहरीन ने सफाई से झूठ बोला। दुख की एक दबीज चादर उसे अपने चारों तरफ तनती हुई महसूस हो रही थी। क्या उसे औलाद की ख्वाहिश नहीं थी? लेकिन जिंदगी की उसे सबसे बड़ी खुशी का गला घोंटने वाला भी तो वो लेकिन जिंदगी की इस सबसे बड़ी खुशी का गला घोंटने वाला भी वो सितमगर ही था। हम अभी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उसी का कहना था, जिसका मतलब मेहरीन अच्छी तरह समझती थी। जाहिर है बच्चा हो जाने की सूरत में वो अपनी मुलाजमत जारी नहीं रख सकती थी, और उसकी मुलाजमत आसिम के लिए एक बड़ा बेनिफिट था। वो फितरतन खुद परस्त इंसान था। अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा वो अपने लिबास और दीगर आसाइश की चीज़ों पर खर्च कर देता था। उसकी जिस वेल ड्रेसिंग की मेहरीन कभी दीवानी होती थी, अब वही शौक उसके जी का जंजाल बन चुका था। ऐसे में मेहरीन की नौकरी घर की अशद ज़रूरत थी। खुद मुख्तार होते हुए भी वो कितनी बेइख्तियार थी, ये उसका दिल ही जानता था। आसिम उसकी ये कमज़ोरी अच्छी तरह जान चुका था, और वो खुद अपने किए को हर सूरत निभाना चाहती थी। अम्मा और शहजाद भाई को उसकी तरफ से कोई दुख मिले या दुनिया उस पर हंसे, ये उसे किसी तरह मंजूर नहीं था। सामने खड़ी सायरा भाभी को बेफिक्री से हंसता देखकर उसे उन पर बेतरह रश्क आया। कितना सुकून और तमानियत थी उनके चेहरे पर। खाला जान किस तरह उन पर वारी सदके होती थीं। पास खड़े अनवर ने झुककर उनसे कुछ कहा तो वो फिर खिलखिलाकर हंस दी। नन्ही रुबा को गोद में लिए वो दोनों किस कदर आसूदा और मुकम्मल लग रहे थे। अनवर के मुतालिक अपने पिछले तमाम रिमार्क याद करके उसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई। वो कितना मुहज़्ज़िब और जिम्मेदार शख्स लग रहा था, सब रिश्तों को मोहब्बतों के साथ निभाता हुआ। और वो खुद कितना गिर गई थी। उसे अपने वजूद से शर्म महसूस होने लगी। बेटा, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? चलो, मैं कब से मूवी बनवाने के लिए तुम्हें ढूंढ रही हूँ। खाला जान के कहने पर वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसे खबर भी ना हुई कि उनकी बुढ़ी आंखों में उसके लिए मलाल के कितने साए लर्जा थे। आज वो कितने अरसे बाद अपनी कॉलीग मिसिस सज्जाद के साथ दफ्तर से उठते हुए करीबी शॉपिंग मॉल में आई। आसिम उसे कभी कभार पिक कर लिया करता था। वो अमूमन ऑफिस से जल्दी उठ जाता था, जबकि मेहरीन के काम की नौयत 4 बजे से पहले फारिग नहीं होने दिया करती थी। लिहाजा वो आमतौर पर घर से नज़दीकी पॉइंट को ही इस्तेमाल करती थी। मिसिस सज्जाद की कोई रिश्तेदार खातून मिल गई थी, वो उनसे बातों में मसरूफ हो गई। मेहरीन वक्त गुजारी के लिए दुकानों के बाहर लगे हुए शोकेसों में से मलबूसात देखने लगी। उसे ये सब बड़े अजनबी से लगे। खुद से उसे कितना अरसा हो गया था कोई नया कपड़ा बनाए। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि आजकल बड़े पाइंचों का फैशन है, कमीज़ों की लंबाई कम है या ज़्यादा। आधी आस्तीनों का फैशन कब शुरू हुआ, उसे तो कुछ भी पता नहीं था। उसके दिल से होक सी उठी। वो ऐसी कब थी जब घर में दौलत की कमी थी, तब भी अम्मा उसे अच्छे से अच्छा पहनाती थी। कम कीमत कपड़ा भी उनके सलीकामंद हाथों में आकर बेशकीमत हो जाता था। फिर जॉब में आने और शहजाद के बाहर जाने के बाद तो उसकी शख्सियत के सारे रंग घुलते चले गए। मार्केट में जब भी नया कपड़ा आता वो सबसे पहले खरीदारों में होती थी। फिर नहीं और शहजाद के बाहर जाने के बाद तो उसकी शख्सियत के सारे रंग खिलते चले गए। मार्केट में जब भी नया कपड़ा आता वो सबसे पहले खरीदारों में होती थी। फिर भाई के भेजे गए गैर मुल्की मलबूसात। वो तो खैर अब भी आने जाने वालों के हाथ काफ़ी कपड़े भिजवा दिया करते थे, लेकिन आसिम ने कह दिया था कि ये सब नाहिद के जहेज़ के लिए अम्मा के पास रखवा दो। हालांकि अम्मा और नाहिद उनमें से बेशतर सिलवा कर पहन लेती थीं। उसकी पलकें खुद ब खुद भीगने लगीं। पता नहीं मिसिस सज्जाद कहाँ रह गईं। मेहरीन ने सर झटकते हुए नजरें शौक से हटाकर सामने सड़क पर जमाईं तो निगाह पलटनी भूल गई।
सड़क के दूसरी जानिब से बने शॉपिंग सेंटर से ढेर सारे पैकेट उठाए बाहर निकलता वो यकीनन आसिम ही था, और उसके साथ जदीद तराश के लिबास में वो जो कोई भी थी, खासी खुश शक्ल थी। पार्किंग में खड़े नए मॉडल की अकार्ड में सामान पीछे रखकर आसिम ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, और वो लड़की उसकी बराबर वाली सीट पर आ गई थी। सड़क के दूसरे किनारे खड़े होकर भी मेहरीन ने आसिम के चेहरे पर छाई सरशारी को महसूस कर लिया था। उस लड़की के चेहरे पर भी गोया मुस्कुराहट ने मुस्तकिल बसेरा किया हुआ था। तौबा है, ये मेरी जिठानी की बहन भी जहाँ मिल जाए न जाने कहाँ कहाँ के किस्से छेड़ देंगी। और तुम भी खूब हो, मुझे छोड़कर यहाँ आ गई। मिसेस सज्जाद हस्बी आदत बोलती चली आ रही थी। मेहरीन, मेहरीन, क्या बात है? खैर तो है? इस तरह गुमसुम क्यों खड़ी हो? वो अपनी बातों का जवाब ना मिलने पर परेशान हो गई। कुछ नहीं, चले। उसने सब्र ज़ब्त के कितने ही मराहिल लम्हों में तय किए। आंखों में हाथ रखे मेहरीन न जाने कितनी देर से लेटी थी। 12 बजने को थे, लेकिन आसिम का अब तक पता न था। आजकल वो देर से ही घर आता था, खाना भी कई दिनों से बाहर से ही खा कर आता था। आज जो कुछ मेहरीन ने देखा था वो उसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का तो खैर नहीं था, लेकिन इंतहाई तकलीफ दह ज़रूर था। आसिम की हरजाई तबीयत से तो वो जल्दी आगाह हो गई थी। ऑफिस में, तकरीबात में, हर जगह वो अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाना जानता था। करीबी फ्लैटों में उसकी बढ़ती हुई दिलचस्पी भी बारहा मेहरीन ने नोट की थी, लेकिन और बहुत सी बातों की तरह मेहरीन ने इस तरफ से भी दिल पर पत्थर रख लिया था, और ये भी था कि किसी मामले ने कोई संजीदा सूरत इख्तियार नहीं की थी। लेकिन आज उसे अपने चारों तरफ खतरा मंडलाता महसूस हो रहा था। आसिम की उस लड़की से बेतकल्लुफ़ी एहसास दिला रही थी कि मामला सीरियस है। दाखिली दरवाजे पर आहट सुनते ही उसने दूसरी तरफ करवट ले ली। वो इस वक्त आसिम का सामना नहीं करना चाह रही थी। अंदर आने वाला आसिम ही था, और हस्बे तवक्का खासा खुशगवार था। गुजरा हुआ खुशगवार वक्त उसके मूड को यकसर अपनी लपेट में लिए हुए था और बदले हुए था। सीटी पर पुरशौक से धुन बजाते हुए वो वॉशरूम में घुस गया। चेंज करके बेड पर आते हुए उसने मेहरीन को 2-3 आवाज़ें भी दीं, लेकिन वो सोती बन गई। उसका दिल इस वक्त आसिम की शक्ल देखने को भी नहीं चाह रहा था, वो जो उसके लिए महज चूंटियों भरा कबाब ही साबित हुआ था। चंद दिनों से मेहरीन महसूस कर रही थी कि मिसिस सज्जाद उससे कुछ कहना चाह रही हैं, मगर रुक रुक सी जाती। आखिर उन्होंने उसे ऑफिस टाइम के बाद पकड़ ही लिया। मेहरीन, मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ वो तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम बेखबरी में मारी जाओ। फिर उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में मिसिस सज्जाद ने जो कुछ बताया, उसका लुब्बे लुबाब ये था कि जिस फैक्ट्री में सज्जाद साहब जॉब करते हैं, वहाँ उन्होंने इत्तेफाक से आसिम को आते जाते देखा। जब उन्होंने उसे एमडी साहब की गाड़ी आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करते देखा तो उससे रहा ना गया, और उन्होंने एमडी साहब के ड्राइवर से उसकी बाबत मालूम किया तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि आसिम साहब का होने वाला दामाद है, और उनकी इकलौती बेटी से जल्द ही उसकी बाकायदा मंगनी होने वाली है। ये सुनकर सज्जाद साहब तो चकरा कर रह गए, और उन्होंने अपना फ़र्ज समझा कि इस सारे मामले को फ़ौरन से बेशतर मेहरीन के इल्म में लाया जाए। इस सारे मामले को मिसिस सज्जाद की ज़ुबानी सुनते हुए मेहरीन का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उस शख्स ने उसका हर भरम तोड़ कर रख दिया था। वो मिसिस सज्जाद के खलूस पर कोई शुबा नहीं था। ये उनकी और उनके शोहर की हमदर्दी ही थी जो वो मेहरीन को आगाह करने के लिए आगे बढ़े थे। लेकिन अपनी ज़ात के रस्ते हुए पहलू तो इंसान खुद से भी पोशीदा रखना चाहता है, हज़ार पर्दे डाले रखता है। बहरहाल अब कुछ ना कुछ करना ज़रूरी हो गया था। इतना तो वो समझ चुकी थी कि इस रोज़ आसिम के साथ नज़र आने वाली लड़की सज्जाद साहब के एमडी की बेटी ही है, पर आसिम से उसका रब्तो ज़ब्त इतना किस तरह बढ़ा ये वो ना जान पाई, और ना ही सज्जाद साहब को इस बारे में कुछ इल्म था। नाइला को फ़ोन करते हुए उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। ये फ़ोन नंबर सज्जाद साहब की कोशिशों से ही मिला था। उन्हीं का मशवरा था कि मेहरीन को बराह रास्त नाइला से बात करनी चाहिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊंचा हो चला है। फ़ोन गालबन किसी मुलाजिम ने रिसीव किया था, जो मेहरीन को इंतज़ार करने का कह गया था। नाइला स्पीकिंग। चंद साथ बाद दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी तो लम्हे भर के लिए मेहरीन से दिल संभालना मुश्किल हो गया। मिस नाइला, मुझे आपसे मिलना है, बहुत ज़रूरी। इतनी सी बात कहते हुए भी उससे अपनी आवाज़ की लर्जिश छुपी ना रह सकी। लेकिन आप हैं कौन? मैंने पहचाना नहीं। दूसरी तरफ की हैरानगी बजा थी। आप पहले कभी नहीं मिले, लेकिन यकीन करें यह मुलाकात हम दोनों के लिए ज़रूरी है। फिर भी कुछ अता पता, इस तरह अजनबियों से मैं कभी नहीं मिलती। नाइला अब भी तजब्जुब का शिकार लग रही थी। मैं आपसे आसिम के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में अब आपकी उलझन कुछ ना कुछ ज़रूर रफ़ा हो गई होगी। मेहरीन का लहजा पुरसकून हो चला था। ठीक है, फिर बताएं कि आपसे मुलाकात कब और कहाँ हो सकती है। नाइला ने फैसला कुन अंदाज में सांस लेते हुए कहा। आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपके घर आ सकती हूँ, अगर आप मुनासिब समझें तो अभी। ठीक है, तो फिर आप आ जाएं, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। वो शायद शशोपंज में खुद को ज़्यादा देर रखना नहीं चाह रही थी। मिस नाइला, अगर ये मुलाकात तन्हाई में हो तो आप फिक्र न करें, मैं समझती हूँ। अच्छा, तो फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़। मेहरीन ने रिसीवर रखते हुए मिसेस सज्जाद की तरफ देखा। बिल्कुल सही किया तुमने, अब सज्जाद तुम्हें सुबहानी साहब के यहाँ छोड़ आएंगे, उन्होंने नाइला के वालिद का नाम लेते हुए कहा। मिसेस सज्जाद ही के घर से ये बातचीत हो रही थी। आसिम आज सुबह
ही 2 रोज़ के लिए फर्म का काम से शहर से बाहर गया था, लिहाजा वो उसकी गैर मौजूदगी में इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती थी। आज महरीन और मिसेस सज्जाद दोनों ही ने ऑफिस से छुट्टी ली थी। प्रोग्राम ये था कि सज्जाद साहब आज लंच ब्रेक तक घर आ जाएंगे और फिर अपने घर से महरीन को लेकर नाइला के यहाँ छोड़ आएंगे। बी रिलैक्स्ड महरीन, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मिसेस सज्जाद ने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी महरीन की शराबी कैफियत को भांपते हुए तसल्ली दी। सज्जाद साहब ने गाड़ी नाइला के घर से ज़रा हटकर पार्क की थी, क्योंकि उन्हें सुबहानी साहब का गेट कीपर और दीगर मुलाजिम अच्छी तरह पहचानते थे। आपका और सज्जाद भाई का आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला सकूंगी। महरीन की आवाज़ रोंद गई। भाइयों के बहनों पर एहसान नहीं होते, आइंदा ऐसी बात न करना। सज्जाद साहब ने धीरे से महरीन का सर थपथपाया तो उसे शिद्दत से मीलों दूर बैठा शहजाद याद आ गया। अच्छा बस अब जाओ, जितनी जल्दी बात हो जाए बेहतर है, सज्जाद साहब ने कहा तो उसने अपनी गीली होती पलकों को खुश कर लिया। गेट से ड्राइंग रूम तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल पुरसुकून हो चुकी थी। कम अज़ कम दिल की वो बेकरार कैफियत और यक होते हाथ पांव अब बिल्कुल नॉर्मल थे। उसे खुद अपने आप पर हैरत हो रही थी। शायद इतने दिन से अपने आप से लड़ते लड़ते उसके एसाब थक चुके थे और उसने सोच लिया था अब अच्छा या बुरा किसी भी फैसले का यकीन इस अजियतनाक सूरत हाल का खात्मा तो कर देगा जिसमें पिछले कई दिन से वो मुसलसल मुब्तला थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाइला हूँ। उसे भी शायद बहुत जल्दी थी, जो महरीन को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ब्राउन कलर के हमरंग कड़े हुए सूट में वो चमकदार बालों के साथ खासी भली लग रही थी। महरीन ने गौर से उसका जायज़ा लिया। अंदाज में अलबत्ता वही बेनियाजी थी जो इस तबके का खासा है। मैं महरीन हूँ, मिसिस महरीन आसिम। महरीन ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाए तो उसके धुआं होते चेहरे को देखकर उसे दिल की गहराइयों से रंज हुआ। क्या बकवास है ये सब, ऐसा कैसे हो सकता है? आसिम और मैं तो। नाइला ने खुद को संभालने की कोशिश की तो महरीन के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। इस बात के सच होने में मुझे कोई खुशी नहीं नाइला, फिर भी मैं इस सच्चाई से तुमको आगाह करने यहाँ तक चली आई हूँ। महरीन ने पर्स से निकाहनामा और दीगर शनाख्ती कागजात निकालकर नाइला के हाथ में दिए, जो वो सज्जाद भाई के कहने पर साथ लेकर आई थी। तेजी के साथ कागजात पर नजर डालती नाइला का चेहरा जर्द पड़ रहा था। महरीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने अपना सर ऊपर उठाया, वरना तो कितने लम्हों से वो यूं ही सर झुकाए बैठी थी। न जाने कितने खूबसूरत ख्वाब उसने पलकों तले बुन डाले होंगे। तेजी के साथ कागजात पर नजर डालती नाइला का चेहरा जर्द पड़ रहा था। महरीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने अपना सर ऊपर उठाया, वरना तो कितने लम्हों से वो यूं ही सर झुकाए बैठी थी। न जाने कितने खूबसूरत ख्वाब उसने पलकों तले बुन डाले होंगे, कितने ही दिलरुबा वादे उसकी मुट्ठी में बंद होंगे। नाइला, मुझे वाकई बहुत। नहीं महरीन, कुछ ना कहें, गलती तो मेरी है, लेकिन यकीन करें मैं बेकसूर हूँ। अनजाने में आपको मेरी ज़ात से जितना सदमा पहुंचा है उसके लिए मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। नाइला ने धीरे धीरे अपनी बात मुकम्मल की तो महरीन का दिल उस प्यारी सी लड़की के आगे झुकता चला गया। आसिम सिर्फ आपका है और आपका ही रहेगा। मैं आपके लिए हमेशा दुआ करूंगी कि कोई और नाइला आपके रास्ते में ना आए। नाइला ने गाड़ी महरीन के अपार्टमेंट्स के आगे रोकी। वो महरीन का लाख मना करने के बावजूद उसे छोड़ने चली आई थी। मेरी और आपकी मुलाकात के बारे में वो कभी नहीं जान पाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। वो मुसलसल उसे इत्मीनान दिला रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया नाइला। गो कि शुक्रिया का लफ्ज़ तुम्हारे खलूस के आगे बहुत छोटा है, लेकिन मेरा रुआं रुआं तुम्हारा एहसानमंद है। महरीन ने गाड़ी से उतर कर कहा तो वो मुस्कुराते हुए गाड़ी बैक करने लगी। शायद हम जिंदगी में फिर कभी ना मिल सकें, क्योंकि इसमें हम तीनों की भलाई है, लेकिन आइंदा जिंदगी में मेरी बची कुची खुशियाँ खुदा के बाद तुम्हारी मरहूने मिन्नत रहेंगी। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। महरीन ने दूर जाती गाड़ी पर नज़र जमाते हुए दिल ही दिल में कहा, लेकिन क्या वो खुद कभी आसिम को माफ़ कर सकेगी? उसने अपने आप से सवाल किया। नहीं, कभी नहीं। लेकिन क्या खबर सब्र का यही कड़वा घूंट उसकी आइंदा ज़िंदगी का तिर्याक बन जाए। यही सोचते हुए वो अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ तय करने लगी। ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। अगर हम देखा जाए हमारे माशरे का, ये वाकई एक सेंसिटिव टॉपिक है और लिटरली ऐसा होता है कि जो होते हैं मेल हजरात, माशाल्लाह से हमारे माशरे के मेल हजरात, वो एक तो वाक़ई ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ही ऐसे हैं। मर्दज़ात एक वो है ना, एक वो भी बड़ा चला था, मर्दज़ात बड़ी प्यारी चीज़ है, तो मर्दज़ात वाक़ई बड़ी प्यारी चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वाक़ई एक तो औरत की कमाई खाना अपना एक शौक़ समझते हैं। फिर अगर वो औरत की कमाई नहीं खाते हैं तो उन्हें बाहर ये सब चौंचले करने का बड़ा एक ना वो समझते हैं कि हमारे पास ये राइट है, हम तो कर सकते हैं क्योंकि हम तो मर्द हैं और मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है। तो वो ये भूल जाते हैं कि 4 शादियों की इजाज़त है उन्हें, 4-4 अफ़ेयर्स की इजाज़त नहीं है, जो वो बड़े मज़े से चला रहे होते हैं और फिर कभी अगर दिल किया तो शादी कर भी लेते हैं, नहीं किया तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये है एक अलमिया है हमारे मुआशरे का
اور رائٹر نے اس پہ قلم اٹھایا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سو اللہ پاک ہدایت ہی دے، اور سب بہنوں کو بھی ہدایت دے جو صرف خوبصورتی پر ہی مر مٹتی ہیں۔ سو اس میں کافی سارے میسیجز ہیں کہ جو ہے نا ظاہری خوبصورتی وہ میٹر نہیں کرتی ہے، تو اللہ پاک نے سب کو ہی خوبصورت بنایا ہے، بس یہ ہے کہ اللہ پاک نے خوبصورتی کا انداز الگ الگ رکھا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبصورتی بہت زیادہ دے دی ہے، کسی کو باطنی خوبصورتی بہت زیادہ دے دی ہے۔ تو اس میں ڈفرینس جو ہے وہ جب ہم سمجھ جائیں گے اور جب ہم اسے قبول کرنا بھی سیکھ جائیں گے تو زندگیاں کافی آسان ہو جائیں گی۔ باقی آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، کامنٹ تو آپ نے کر ہی دیا ہوگا اور لائک بھی کر ہی دیا ہوگا، مجھے پتہ ہے کر دیتے ہیں آپ لوگ، ایسے نہیں ہے۔ بہت اچھی ہے ہیومن رائٹس فیملی، ایسے ہی تو نہیں ہے نا، ہم ایک فیملی کسی وجہ سے ہیں، فیملی ہی تو فیملی کا کہتے ہیں نا، فیملی ہی فیملی کو اپریشیٹ کرتی ہے، چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں ہم۔ جیسے کہ میں جیسا بھی کھانا بنا لوں تو میری تعریف ہوتی ہے، فیملی والے کرتے ہیں مجبوری ہے، کرنی پڑتی ہے نا۔ سو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی لائک اور کامنٹ کر دیا ہوگا، باقی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔